के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव प्रेस से मुखातिब हैं। Торговая организация, об этом тоже прямо записано, усилиям, которые пока искусственно, подчеркну еще раз, сдерживаются американцами и их союзниками. И в этом же ряду идет упор на необходимость выполнения Западом своих обязательств, своих обещаний многолетних, которые тоже не выполняются, в том числе о передаче технологий. Жестко поставлена задача, что развивающиеся страны больше не будут мириться с тем, что их ставят перед ложным выбором, либо бороться с бедностью, либо вкладывать деньги в борьбу с изменением климата. Это ложная альтернатива, и, конечно же, задачи экономического и социального развития выступают на первый план. В этой связи в декларации также записана необходимость выполнения и давних обещаний о передаче технологий в страны глобального юга, не просто вывозить из них сырье и потом получать добавленную стоимость и соответствующую прибыль. Говорится и о том, что давно Запад подписался под тем, что будет ежегодно выделять по $100 миллиардов на цели подготовки экономик к противодействию негативным последствиям изменения климата. Ничего из этого сделано не было. Так что декларация начинается о том, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями и осуществить для того, чтобы обеспечить мировую подготовку экономик to counter the negative consequences of the climate change. Nothing of that has been done. The declaration also mentions all those tasks that need to be done in accordance with the long-standing promises in order to ensure a balance of interests in the global economy. It is a long way to go, but this summit has been a milestone from the point of view of... तो आप सुन रहे हैं सर्गेई लावरोव को, जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं, और उनकी तरफ से पहला स्टेटमेंट दिया गया कि जो G20 का आयोजन हुआ वो सफल तरीके से आगे बढ़ा। G20 से वैश्विक संस्थाओं में सुधार का मौका मिला है, ये भी उन्होंने अपने बातों में रखा। वैश्विक संस्थाओं के बारे में जिक्र किया कि किस तरह से ये संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, और G20 का सफल आयोजन भारत ने किया है। ग्लोबल साउथ को जानने का मौका मिला है, ये भी बात रखी, पुरजोर तरीके से रख रहे हैं विदेश मंत्री जो कि रूस के सर्गेई लावरोव हैं। Но он не про Украину. Там, да, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирование этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН в их एक बात और पुरजोर तरीके से कही जा रही है, G7 देशों से ज्यादा जो कि G20 देश हैं, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा है, और ये ज्यादा पुरजोर तरीके से काम किया जा रहा है। $100 बिलियन देने का वादा नहीं निभाया, ये कहा जा रहा है। पश्चिमी देशों पर लावरोव ने निशाना साधा है, आरोप लगाया है वेस्टर्न कंट्रीज पर कि $100 बिलियन देने का वादा नहीं निभाया गया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज पर निशाना साध रहे हैं सर्गेई लावरोव। Нашим коллегам в кулуарах много об этом беседовали, когда в Киеве состоялся государственный और ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों का जो यूक्रेनी एजेंडा है वो नाकाम साबित हुआ है। पश्चिमी देशों का जो यूक्रेन को लेकर एजेंडा है वो नाकाम रहा है। सर्गेई लावरोव ने निशाना साधा है वेस्टर्न कंट्रीज पर, पश्चिमी देशों पर, और कहा है कि जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया। $100 बिलियन का जो वादा था वो नहीं निभाया गया है। तो बड़ी बातें सर्गेई लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा फेल हुआ है, पश्चिम नाकामयाब हुआ है यूक्रेनी एजेंडा को लेकर, और ये बात डायलॉग में कही गई है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है सर्गेई लावरोव की तरफ से। तो एक बड़ा निशाना इंक्लूडिंग अमेरिका को लेकर सर्गेई लावरोव की तरफ से।
в Киеве в феврале 2014 सचदेव सर, года ये जो बड़ी बात никоим कही है образом не могут पश्चिम претендовать का на जो то, чтобы यूक्रेनी представлять एजेंडा интересы फेल हुआ है, крымчан, क्या жителей बोलना चाह रहे हैं Востока सरगेई Украины. लावरोव? По-моему, тут даже доказывать нечего. Так что इनकी свою कॉन्स्पिरेसी территориальную थ्योरी है целостность कि своей страны территориальную целостность नाटो का русский режим एक्सपेंशन разрушил самостоятельно रूस की तरफ हो रहा है в соответствии с और уставом. इस रूस की तरफ यूक्रेन को मिलाते हुए वो पूर्व जाने हैं जितना कि और रूस का ये धारणा थी कि понимание 2000 происходящего, правильное понимание. सन से पहले 97 में या 95 में समझौता हुआ था कि नाटो का और एक्सपेंशन नहीं होगा जब वॉर्सो पैक्ट को डिसॉल्व कर दिया गया था। तो अब इस षड्यंत्र का जो नज़रिया है उसको फेल करने की बात ये कर रहे हैं कि अब हम यूक्रेन को हमने नाटो में शामिल नहीं होने दिया है और यूक्रेन में जो न्यू नाज़ीज़ थे लेकिन उनको भारद्वाज सर एक बात और भी है कि वो ये भी मान रहे हैं कि बातचीत चल रही है, मतलब यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। क्या संकेत माना जाए इसको? देखिए, मतलब डायलॉग प्रोसेस दो को बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। दो बातें उन्होंने सीधा सीधा इंडिकेट किया है। पहली बात कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम नहीं कर रहे, इशारा किया है कि वेस्टर्न डोमिनेटेड, अमेरिकन डोमिनेटेड। दूसरा, G7 की बजाय G20 को वरीयता दी है। G7 को भी माना कि एजेंडा है और रूस पहले सदस्यता बाहर निकाल दिया गया। अब जो तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इंडिकेट किया कि ट्रस्ट डेफिसिट है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स की ज़रूरत है। लड़ाई क्या है? लड़ाई है कि मिलिट्री, कोई इकोनॉमिक और दूसरे मुद्दों पे लड़ाई नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी और मिलिट्री के मुद्दे पे रशिया का वेस्टर्न नाटो कंट्रीज़ के साथ सीधा सीधा लड़ाई है। तो रशिया इंडिकेट कर रहा है कि अब हमको सिक्योर, आप साबित कीजिए कि आप पे किसी भी तरीके का नाटो का खतरा नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से शांति बहाल होगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स नहीं हो रहे हैं। डायलॉग की ज़रूरत है, मोदी जी ने कहा डायलॉग की ज़रूरत है, डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, साथ बड़ी बैठने बात की ये ज़रूरत कही है। है कि कीव ने खुद अपने इलाकों को खोया है, ये सरगेई लावरोव कह रहे हैं। और पर्दे के पीछे समाधान पर बातचीत, यूक्रेन संकट पर लगातार बातचीत जारी है। इस बीच आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी देश जो है वो वादा नहीं निभा रहे। देखिए रशिया क्या है, एक रिविजनिस्ट पॉलिसी तो रखा है क्योंकि ये स्लोविक रीजन है जिस पे रशिया का प्रभाव रहा है। अब रशिया के प्रभाव को कम करके नाटो अपना एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच अपना रहा है। स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, पोलैंड हुआ, यूक्रेन आ गया है। तो ये जो सारा क्षेत्र है जो पहले फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट था, वो अब उस पर वेस्टर्न कंट्रीज हावी होते जा रहे हैं। तो रशिया के दरवाजे तक थ्रेट आ गया। रशिया ने इसको संज्ञान लिया और निश्चित रूप से यूक्रेन पे अटैक किया, क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया और ये उसका अपना पॉलिसी रिविजनिस्ट हो गया है। लेकिन सचदेव सर, कहीं कोई इंडिकेशन देख पा रहे हैं आप इनके बयानों में कि आगे किसी पीस प्रोसेस में रूस इन्वॉल्व होना चाहता है या इनिशिएट करना चाहता है? एक बड़े देश, एक सुपर पावर होने के नाते शायद दुनिया ज्यादा रूस की तरफ देख रही है। जी, पहली बात तो ये है कि इनमें जैसा कि कहा गया पहले भी कि कुछ शिकायत का स्वर है जो सिस्टम में इनएडिक्वेसीज पा रहे हैं, वो शिकायत भारत को भी है, उस तरह की शिकायतें। तो एक तरह से भारत के साथ एकजुट होने की बात की जा रही है। और दूसरी ओर ये जो इनकी समस्या है यूक्रेन वॉर की, उसके बारे में इनका बहुत बड़ी बात कही गई है। सरगेई लावरोव ये कह रहे हैं कि यूएन चार्टर में है जनमत संग्रह की बात। तो इसका मतलब ये है कि रूस बातचीत के लिए तैयार है। जो बातचीत में अड़ंगा हो रहा है वो पश्चिम की तरफ से हो रहा है और यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। जी, तो आरोप लगा दिया। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बात पहले से कि युद्ध जो बढ़ा रहा है वो नाटो बढ़ा रहा है, जो प्रोवोक कर रहा है रशिया को नाटो कर रहा है। वो रेफरेंडम स्लोविक रीजन में करना चाहते हो, कहते हैं कि जब तक आप कंट्रोल नहीं हटाओगे तब तक रेफरेंडम आप नहीं करेंगे। ये सर दिल्ली डिक्लेरेशन को तारीफ की उन्होंने, कहा कि बड़ा ही संतुलित है। नहीं, क्यों संतुलित है? इसका कारण ये है कि भारत जो है, भारत की विदेश नीति के 3 बड़े पहलू हैं: इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तीसरा मल्टी अलाइन। बात कंटिन्यू रखिएगा सर। मैं जल्दी से दर्शकों को बता दूं जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सरगेई लावरोव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा यूएन चार्टर में जनमत संग्रह, रेफरेंडम की बात कही गई है। जनमत संग्रह को पश्चिम ने अनदेखा किया है, इस रेफरेंडम को अनदेखा किया गया है। यूएन चार्टर में जनमत संग्रह की बात कही गई है।
एक और बड़ी बात जो कही गई है उनकी तरफ से, सर्गेई लावरोव की तरफ से, यूक्रेन शर्त माने तो ग्रेन डील को हम तैयार हैं। अगर यूक्रेन कंडीशंस मान ले तो हम ग्रेन डील को तैयार हैं। पुतिन मतलब बार बार कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन को शर्त मानने की जरूरत है। कंडीशन क्या है? कंडीशन साफ साफ है कि आप नाटो ज्वाइन मत कीजिए, आप रशिया के साथ में कॉन्फिडेंस रखिए, साथ में चलिए, और जो डोनबास रीजन है उसमें जनमत संग्रह कराइए। अगर वो रशिया के साथ आना चाहते तो करे। सीधी सीधी अप्रोच है। भारत जैसे देश की जरूरत है जो मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी में विश्वास करता है, जो रशिया के साथ भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना अमेरिका। लेकिन एक चीज बहुत दिलचस्प है, मैं उस पर लौटूंगा उस सवाल पे भी। और देखिए, इस बीच हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूटा, ये लावरोव कह रहे हैं। पश्चिमी देशों का जो एक तरीके से नियंत्रण था वो टूटा है, ये लावरोव का कहना है। लगातार पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन को मिलता रहा इस युद्ध में। बावजूद इसके रूस की बढ़त रही इस युद्ध में। रूस यूक्रेन के इलाकों को जीतता रहा, जबकि पश्चिमी देशों नेटो ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। तो ये सारी बातें कह रहे हैं सचदेव सर, लेकिन 3 बड़े बिंदु हैं, उसको, उन डॉट्स को क्या आप मिला पा रहे हैं? एक तरफ तो ये कि ये युद्ध रुक नहीं रहा है, दुनिया को शांति चाहिए। नंबर 2 कि यूएनएससी में बदलाव की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और तीसरी बात, भारत यूएनएससी में सदस्यता चाहता है। अगर दुनिया को युद्ध खत्म करना है, पीस चाहिए, तो कोई ऐसा देश, भारत जैसा देश, क्या इस वक्त यूएनएससी की जरूरत है? और क्या यह सही समय है कि रूस और दूसरे देश भी इस चीज की एडवोकेसी बढ़ाएं कि भाई यूएनएससी में भारत की मौजूदगी दुनिया को युद्ध से दूर ले जाएगी, शांति की तरफ ले जाएगी? समय उपयुक्त है। पहली बात तो ये कि युद्ध में ठहराव आ गया है, ये बैटल ऑफ एट्रिशन बन गई है। कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर जो G20 के फाइनल डिक्लेरेशन में जो फॉर्मुलेशन आया है वो एक सर्वमान्य है, वो रूस ने भी उसकी तारीफ़ की है। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं वो औरों से भी अलग नहीं है, अमेरिका खुद कह रहा है। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं भारद्वाज सर? कुछ ऐड करना? सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा। पुतिन कहते हैं अपने सैनिकों के साथ मुलाकात करके कि हम जीतेंगे, लेकिन वहीं कूटनीतिक तौर पर सर्गेई लावरोव कहते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं अगर कंडीशन मान ले यूक्रेन। नहीं, देखिए, दोनों ऑप्शन ओपन है। युद्ध भी कर रहे हैं, युद्ध तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप डायलॉग भी कीजिए। लेकिन जो बड़ी बात है भारत का, देखिए, भारत ने साबित कर दिया कि भारत कोई भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में पार्ट होगा और उसको जिम्मेदारी दी जाएगी तो बहुत बखूबी निभाएंगे। G20 ने साबित कर दिया। भारत कह रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो, भारत को जिम्मेदारी दी जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि हम इसीलिए मैं पूछ रहा था सर कि क्या ये सिचुएशन, ये बुरी सिचुएशन है, लेकिन क्या ये सिचुएशन भारत के लिए कोई विंडो खोल सकती है? निश्चित रूप से खोला है, खोल नहीं सकती। भारत ने जो अपने आप को डोमेस्ट्रेट किया है कि हम बहुत बड़ी सांस्कृतिक ताकत हैं, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और हम एक डेमोक्रेसी भी हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है। तीनों दावेदारी है, 1/6 पॉपुलेशन। नहीं, मैं इसमें कह रहा हूं क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो बाधा डालता है।